Hi everybody, good afternoon. That please confirm if I am clearly audible and the screen visible and legible. Yeah, sounds good. Okay guys, so tell me how did you enjoy your week? It was a rainy week, lovely weather, heavy rains, and nothing specifically to do. Yeah, flood in Jaipur, flood in Dehradun, and Nauka Vihar in Gurgaon. Yeah, is there anybody who lives in Gurgaon? Actually, these are not flood. This is all thanks to the clutter we make and we choke our drainage. We, we the proud people, we the educated people. अगर सिल्ट निकलने लगे तो इतनी पॉलिथीन निकलेगी कि गंगा ब्लॉक हो जाए ड्रेनेज तो क्या चीज है. चलो खैर, it is the way it is. Let's get back to business. I left you with many tactics to clean up the data, and I asked you in the last lecture that tried to complete that hackathon. Did anyone make submission there? Was that anybody able to make submission? Today we will try that, but just before that, I want to know. Is there anybody there? You people are dropped at silent. So I would take that as a no, as a lazy no. Yeah, I could, I can understand and I can gel to it. I already admitted it was a lazy week. Did I talk about something called confusion matrix? Did I? Okay, and okay, let's see. Yeah, cross tab or confusion matrix or but and did we talk about tuning the model? I think we didn't. Did I discuss that henceforth you will prefer to read dataset with read underscore CSV? This one is probably yes. Okay.
let's see today. You don't need to code. Just follow me on my screen, and please don't doze off. Stay attentive. Uh, Very quickly, I will try to move on to some new things. Reading the dataset, that's very much sorted. Using readr package rather than base package. It reads, it is rather more clean. It is cleaner while reading. Then binding the rows so that Anji, what was so tricky about it? Binding the rows of test and train to create a master dataset. Yes, it is not, nothing very technical about it. It is just that I want to clean in one go. Otherwise, I will have to clean time and again. Okay, treating missing values. हाँ जी, क्या क्या किया था इनका हमने? I see missing values here, and we saw when there was 77%. Cabin हमने ड्रॉप ही कर दिया था. Then we see one missing value was in fair. तो हमने देखा था कि थोड़ा सा घूम घाम के देख लेना चाहिए. Right? Then we moved ahead again for embark. Again, embark में the popular choice says mode, which is S. However, we differed in this opinion, right? Because तुम मेरी बात सुन रहे थे और थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे थे. तो हमें समझ आया कि rather than S, C seems to be a better choice. So where it goes. फिर हमने मिसिंग वैल्यू एज में देखा था. फिर हमने सीखा था मीडियन से या मीन से भी रिप्लेस कर सकते थे इसको. और फिर क्या देखा था? हाँ जी, क्या हो गया था? कुछ ऐसा हो गया था. सही बात है. मीन या मीडियन से रिप्लेस कर दिया था. मेरा डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो गया था. तो वी वेंट अहेड विद. फिर हमने कुछ और तिकड़म सोचा. वो क्या था? फिर हमें समझ आया बेटर है माइस कर लेना चाहिए. rather than mean, median, these kind of things. If there is no other choice available, so I can give it a try with mice. लास्ट हमारी बात यही हो रही थी, करेक्ट? और फिर आप में से किसी ने पूछा था कि माइस हमने अगर ये इतना ही बेहतरीन एल्गोरिथम है, देखा था ना हमने, माइस से देखा और माइस से हमने फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखा था. तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन आया था? मोर और लेस इट मेंटेन माय डिस्ट्रीब्यूशन. तो पूरे जैसा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन था उसको उसने स्क्रो नहीं किया. It didn't fool around with the original distribution. It is more or less the same. Then here came question from couple of you people कि अगर ये इतना ही अच्छा काम कर रहा है तो शुरू में क्यों नहीं कर लिया? Why not always do mice as such? If I remember correctly, this was where I we stopped brainstorming in last session.
So let's start at that very point. See, it is not such a grand choice. My algorithm for what? Imputing missing value depending upon their nearest neighbor. नियरेस्ट नेबर इन द सेंस जिसकी वैल्यू बाकी अवेलेबल वैल्यू जिसकी बिल्कुल अच्छे से मैच हो रही होंगी in all in most of the permutations and combinations. You will see that in random forest when you will come to that. You will get to know in Python. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत हमेशा इसे आंख बंद करके यूज नहीं करना है. इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस which you have to keep in mind. Number 1, कैटेगोरिकल वेरिएबल. अगर आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल में मिसिंग वैल्यूज हैं तो ये अच्छा काम नहीं करेगा. दैट्स वन. कैटेगोरिकल प्रॉब्लम जैसा आपका भी एम्बार्क था, यही कह रहे थे ना तुम लास्ट टाइम कि सारी इससे हटा देते फिर तुम नहीं करता. अच्छा, बिकॉज एम्बार्क कैटेगोरिकल कॉलम आ जाता. Second, mice will be effective when all other variables are complete. Complete means they do not have missing values. Reason being the very algorithm of mice. Think about it. मैं बाकी सब जगह से मिसिंग वैल्यूज हटा चुका हूं. अभी मिसिंग वैल्यूज कहाँ है इस डेटा में? सिर्फ सर्वाइव्ड में, टारगेट कॉलम में, जिसमें मुझे प्रेडिक्शन देना है. तो टारगेट कॉलम तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया. टारगेट कॉलम तो इंक्लूड ही नहीं किया था ना माइस के लिए. और बाकी सब मैं ट्रीट कर चुका हूं. अगर ये नहीं किया होता, नाउ थिंक अबाउट इट. माइस एल्गोरिथम क्या देखता है कि इस मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करना है कैसे. कि सपोज अच्छा ये भी मेल है, ये भी मेल है, इसकी एज 20 थी और सपोज इसके बाकी सारे पैरामीटर इस बंदे से मैच हो रहे हो. इस बंदे के और इस बंदे के सारे पैरामीटर मैच हो रहे होते हैं. मेल भी हैं, सिबलिंग एसपी भी हैं, ऑल अदर्स भी हैं, ब्ला 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 भी है. तो फाइनली क्या हुआ होता? मेरा एल्गोरिथम कह देता कि हाँ ठीक है, इसमें जो मिसिंग वैल्यू है उसकी जगह पे इसकी एज रखी जाती है. बिकॉज बाकी सारी चीजें कुछ ना कुछ इसका टेम्परामेंट सब चीजें मैच हो रही. मैच नहीं हो रही तो ऑलमोस्ट आसपास है. लेकिन थिंक अबाउट इट, काम कहाँ पे खराब हो जाता है? एज में मिसिंग है, यहाँ फेयर में भी कुछ मिसिंग चल रहे हैं, यहाँ पता लगा पार्ट्स में भी कुछ मिसिंग चल रहे हैं. पता है होने क्या लगा? इस मिसिंग के बेसिस पे ये इम्प्यूटेशन हो जाएगी और इस मिसिंग के बेसिस पे ये इम्प्यूटेशन हो जाएगी और दोनों ही कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा. इसी तरह तो मैच कर रहा था ये. तो ये भी मिसिंग है और वो भी मिसिंग है और उससे आगे भी कुछ मिसिंग है. समझ रहे हो? तो मल्टीपल कॉलम्स में अगर मिसिंग वैल्यूज हुए, ये भी मिसिंग है, पेयर में भी कुछ मिसिंग है, इसमें भी कुछ मिसिंग चल रहा है, अरे तो मैच किसे करेगा? मैच करने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है. सारे के सारे उठा के रिपीट कर देगा, एक तरह से डुप्लीकेट रो बना देगा. नॉट अ वेरी गुड आइडिया.
गॉट दिस आइडिया, राइट? तो माइक जब आप यूज करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही रो के मल्टीपल वेरिएबल्स मिसिंग हो रहे हैं। This way, बाकी सब आप ट्रीट कर चुके हैं। देयर इज ओनली वन कॉलम वेयर देयर आर मिसिंग वैल्यूज एंड नाउ यू आर यूजिंग माइक्स। थर्ड इज वेरिएबल सिलेक्शन which you should keep in mind। अब ये मत करना कि टाइटेनिंग में आपने किस हिसाब से लिए। टाइटेनिंग में मैं दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको दिखाने के लिए। प्रैक्टिकली ऐसे डेटा सेट नहीं होंगे आप लोगों को। प्रैक्टिकली आपका डेटा सेट कैसा होगा, वेयर यू कैन मेक सेंस ऑफ समथिंग, लाइक इफ देयर इज मिसिंग वैल्यू इन सैलरी फॉर एग्जाम्पल। अगर आप लोगों को सैलरी मिसिंग है एंड देन देयर इज अ कॉलम, सपोज ये डेटा ऐसा होता है, दिस इज लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, हियर इज सैलरी। सैलरी कुछ लोगों का मिसिंग है, चलो हो गया मिसिंग, नो प्रॉब्लम। बट देन देयर इज कॉलम टैक्स पेड, कि उन लोगों ने टैक्स कितना दिया है। हाँ जी, कुछ लेना देना हो सकता है, बात बन सकती है, कुछ मिल जाएंगी मिसिंग वैल्यूज थोड़ी बहुत। सो मिसिंग 1000 तो मैनुअली तो करोगे नहीं, अभी माइस चलाना सेंस करता है, आप समझ रहे हो? तो अभी वापस मेरे को मत बोलना कि इन लोगों की मिसिंग वैल्यू आपने कैसे इंक्लूड कर दी, एज का जेंडर से क्या लेना देना। हाँ, कुछ लेना देना नहीं है, प्रोबेबली नहीं है। एज का फेयर से क्या लेना देना, हाँ नहीं है, प्रोबेबली नहीं है, लेकिन प्रोबेबली हो भी सकता है। So practically this variable selection will make sense. You will never include target variable, that's for one। टारगेट वेरिएबल तो हो नहीं सकता। दूसरे ऐसे वेरिएबल्स भी नहीं हो सकते, रिमेंबर हमने हटाए थे ये, जिनका मेरे को इन वन को मेरे को मालूम है कि ऐसे वेरिएबल्स का कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिकली। रिमेंबर माइस इज जस्ट एन एल्गोरिथम। जैसे मैं अंदाजा लगा रहा था एम्बार्ग में मिसिंग वैल्यूज के लिए कि शायद फेयर से इसका लेना देना हो जाएगा कुछ, या फेयर का क्लास से, पैसेंजर क्लास से कुछ लेना देना हो जाएगा। उसे एल्गोरिथम को बेचारे को नहीं पता ना, ये काम आप लोगों का है उसे बताना कि कौन से वेरिएबल्स का इससे लेना देना हो सकता है। अगर तुमने गलती से उसे ऐसे वेरिएबल्स दे दिए, वो इन्हें भी कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करेगा, गलत कर देगा सब। उसे नहीं बताना कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो तो फिट करेगा। सो बी केयरफुल व्हाइल सेलेक्टिंग दीज वेरिएबल्स। करेक्ट? बढ़िया, सो फार सो गुड। Abhilasha, it will randomly select some rows and randomly select some variables. You will see that it is random forest algorithm doing it this all behind. अभी मैं समझाने लगूंगा तो समझ नहीं आएगा, फिलहाल यू स्टिक टू माइस। अभी वहां तक नहीं जा रहे कि इसका एग्जैक्टली बिल्कुल डीपर मैथमेटिक्स क्या है। फिलहाल इतना समझो कि वो मैनुअली वही जो मैं मैनुअली कर रहा था वही वो एल्गोरिथम करने की कोशिश कर रहा है। इट विल मैच वेरियस परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड ट्राई टू फाइंड द नियरेस्ट नेबर और उसकी वैल्यू से इंप्यूट कर। And last but not the least, despite everything said and done, despite you have taken care of everything, still when you are done, हाँ जी वही जो हमने देखा था, still you should check the distribution because at the end of the day it is algorithm. Despite everything taken care of, फिर भी गलती हो सकती है उससे। तो लास्ट में जो हमने चेक किया था, क्या चेक किया था हमने कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन उल्टा सीधा तो नहीं बना दिया है। ये जो चेक किया था हमने, यार हो सकता था ना ये भी माइस भी गलत कर देता, कुछ कर सकता है एल्गोरिथम, हो सकता है ये वाला बार बिल्कुल ऐसे शूट अप करा देता या कुछ और करा देता।
So I cannot blindly rely. Even then you should see distribution, and if this distribution has gone haywire, so it becomes iterative again. You will go back and see what has gone wrong. Something has gone wrong. कुछ तो गलत हो गया. Despite that, चीज अच्छी है क्या नहीं? आदमी अच्छा है. Hope you remember me saying time and again that it can be your last option. Shouldn't be your first option. पहली कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि लॉजिकली आप देख दाख के कुछ इम्प्यूटेशन ला पाएँ. हो सकता है देखने से ही कुछ मिल जाए जो व्हिच इज़ रॉक सॉलिड. लाइक जस्ट द एग्जांपल अ फ्यू मिनट्स अगो. अगर सैलरी मिसिंग है, लेकिन मेरे को कहीं पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उन्होंने टैक्स कितना-कितना दे रखा है, तो शायद उससे आई कैन हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि सैलरी कितना होगा. इफ नॉट एक्यूरेट, आई वुड बी वेरी क्लोज. So stick to that approach first. If you can't find anything, then okay, maybe you can try several things. In that case, maybe you will try mean, median, or mice, or whatsoever works for you. Okay, let's go ahead. लेकिन वो नहीं करना जो तुम लोग लास्ट टाइम कह रहे थे कि आंख बंद करके माइस ही लगाते हैं ना, फिर तो वो नहीं करना है. This can be your last option, but not never the first option. Then we move ahead with univariate. अच्छा ठीक है. अब हमने देखना शुरू किया था कि ओके, कुछ तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो काम ही नहीं आएंगे. हाँ, नेम, टिकट, ये तो मुझे मालूम है, काम ही नहीं आ रहे. कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है वैसे देखने में लग रहे हो कि काम आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब नहीं है उनको. लाइक एम्बार्क. यस और नो? मेरे को ह्यूमन सेंस, कॉमन सेंस जो भी बोलो, मुझे उससे मालूम है कि एम्बार्क का सर्वाइव से कोई लेना देना नहीं है, सर्वाइवल से. लेट्स ड्रॉप दैट टू. फिर हमने देखा ओके, तो फालतू वेरिएबल्स चले गए. पैसेंजर क्लास ये तो फैक्टर होना चाहिए. ओके, कैरेक्टर, कैरेक्टर या फैक्टर जो भी है कैटेगोरिकल होना चाहिए बेसिकली. जेंडर कुछ खास नहीं है. सिबलिंग एसपी, सिबलिंग एसपी से आप क्या कर सकते हो? रिमेंबर ये पैरामीटर्स पहले भी आए और हमने बात की थी कि ये समझ नहीं आ रहे, कंफ्यूजिंग डेटा है ये, सिब एसपी एंड पार्ट्स. So here comes another trick which you can play. तो रिमेंबर हमने क्रिस्पियम में शायद बात की थी फीचर इंजीनियरिंग या डेटा derived metrics या feature engineering, this kind of jargons maybe I have said. Could you remind me? What is feature engineering? It is nothing but deriving a new feature from existing features. So rather than using sibling plus spouse and then having parent plus children, and which are nowhere making sense, what I am doing is I am creating a new column which is relatives. तो अब सिबलिंग थे या स्पाउस थे या पेरेंट थे या चिल्ड्रन थे, तो दे आर ऑल रिलेटिव्स या फैमिली, या जो भी बोलना चाहो उसको. I have created a new feature, relatives. और हाँ जी, नंबर ऑफ रिलेटिव से शायद सर्वाइवल पे कुछ फर्क पड़ता होगा. Is there a chance that number of people traveling along with a person would impact his or her chance of survival? Maybe positively, maybe negatively, I don't know.
Okay, maybe yes, maybe no. चलो. However, however, अगर पढ़ रहा है तो या नहीं पढ़ रहा है तो एक चीज तो पक्का है, इस वेरिएबल को हमारे को एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो इट इज वे मच इजियर देन दिस एंड दिस. Yes or no? Now it is making some sense. Okay, so this is feature engineering. I have developed a new feature from existing features. Maybe you can delete them, or maybe let's not delete them for now. Let's keep them here. Then there is age. Okay, continuous variable. Let's check a quantile plot. Let's find it out if there is any outlier there. Okay, my mistake. Okay, I just have to run it along. And what do we see? Is there outlier? Yes, there is. So up to 99 percentile, that is 65, everything was going fine. After that, there is a sudden jump and it is directly 80. So although it is not such a huge outlier, but anyway, let's treat this. Seems good. Same goes for fair. Let's check if there is any outlier, and as it happens, if there is, okay, there is huge outlier up to 99 percentile. Okay, maybe a few dots are cracking, but after that it is directly 500, so which is way too large. So maybe now we are settled. Our data is passenger ID. Okay, passenger ID अभी हमने हटाया नहीं है. It is nonsense variable, but हमने अभी हटाया नहीं है. Survived is 0 1. It should have been category. लेकिन you know again मेरे को categories को वापस dummy variable बनाना है तो 0 1 ही बनेंगे. It is already numeric 0 1. So let's keep it that way. हाँ, passenger class ये categorical हो जाना चाहिए था. This is character, age, recipe, parts. ये सब तो continuous. Okay, rest seems good. और कुछ करना रह गया है ये? आई थिंक स्केलिंग हो जानी चाहिए. यस, आई हैव continuous variables from 5 to 9 and they should be on a common scale. Okay, I know sapply, a wonderful thing. And I want to deploy a function scale. Warning setting, you call this a glitch. It happens with this readr package sometimes when I run code time and again because you saw that I made some mistake due to which I had to run code again, and that is why it is using it. These are just warnings. Actually, there is anything other happening.
My code is doing just fine as long as there is no error. Very fine. Continuous data, that is scaled. Categorical data is as categorical data. Survived 0 1 होना चाहिए था, 0 1 है. न्यू वेरिएबल क्यों बनाया है? मैं बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं. In fact, it is one of the key weapons for a good data scientist. It really becomes a weapon if you can derive. What are you trying to do? You are trying to predict chances of survival depending on this. If you can, manipulate this data into some stronger variable which makes sense also. एक वेरिएबल तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, दिखाता हूँ. मैं कहता हूँ सर्वाइव्ड पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है किसका? लॉग ऑफ फेयर प्लस साइन ऑफ एज माइनस पैसेंजर क्लास की पावर 3. अगर मैं ये बताने लगूं कि मैं एक वेरिएबल बना लूं ऐसा, दिस इज वन वेरिएबल z और इसका सर्वाइव से बहुत अच्छा रिलेशन आता है, आता होगा. क्लाइंट को क्या बताऊंगा? कौन है? क्लाइंट पूछेगा ना मेरे से, क्या है ये, क्या कहते हैं इसको? So such feature engineering, that is nonsense. But see along, यहाँ पर भी तो वही कर रहा हूँ मैं, मोर और लेस. अगर मैं इस डेटा के केस में मैं बताऊं कि जिनके साथ सिबलिंग हो और स्पाउस हो और ये नंबर हाई हो, उनके सर्वाइवल पे जाते. अब क्या बताऊं मैं अपने क्लाइंट्स को जो शिप पे जाने वाले हैं, उन्हें क्या बताऊं? बीवियां ज्यादा ले जाओ या भाई बहनों को ज्यादा को ले जाओ. दिस इज शिप प्लस एसपी. इट इज अ नॉनसेंस वेरिएबल. सो इसलिए फीचर इंजीनियरिंग कर रहा हूं, सो दैट इन केस इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है सर्वाइवल परसेंटेज पे, तो बता तो पाऊं कि कौन है, ये क्या है. So that is feature engineering. I'm trying to feature a more practical, a more explainable variable from existing features, which may be useful also. So if you learn it properly, you can develop very strong features from existing features, and you can do wonders. बहुत अच्छा. कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा वेरिएबल बना लिया which is explaining your target variable very accurately. Okay, so far okay. Next हम वेरिएबल बनाया तो you know this drill. I'm not reinforcing these things. ट्रेन और टेस्ट वापस अलग अलग कर लिए. टेस्ट पे प्रेडिक्शन देना है. ट्रेन इज अवेलेबल डेटा. अब अवेलेबल डेटा में ही मेरे को CA2s बिकॉज अवेलेबल डेटा से ही मेरे को ट्रेन और वैलिडेशन 2 डेटा सेट बनाने हैं. आई एम फेचिंग अ न्यू पैकेज कॉल्ड CA2s, जिसका ज्यादा कुछ काम और कुछ होता नहीं है. क्या करता है ये? Why? Pay attention. I am using sample.split because sample.split from CA2s because of these. Yes, your target is continuous. Target is not continuous अभिलाषा. Target is categorical. Continuous होता तो random sample कर लेते, बात ही क्या थी. Now target is your target is logical. Yes and no. It has 2 categories. और उनका ओरिजिनल डेटा में कुछ परसेंटेज है. I don't want to disturb that percentage. Right? वो proportion खराब नहीं करना चाहता. So I am using
मेरे को करना तो रैंडम सैंपल ही है, बट दैट रैंडम सैंपल शुड बी कंट्रोल्ड टू मेंटेन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस डेटा। सो ट्रेन एंड वैलिडेशन। अब देखें अवेलेबल डेटा में, देखो 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 अवेलेबल डेटा में 0-1 की रेशो, ट्रेन डेटा में 0-1 की रेशो, वैलिडेशन डेटा में 0-1 की रेशो। हाँ जी, बढ़िया है। It is equal if we don't consider decimal places, it is exactly equal. So हो गया वो काम जो करना चाह रहे हैं। Then we moved ahead with building models. Family is equal to binomial. ये सब समझ चुके हो आप लोग। पहला मॉडल बनाया, समरी चेक किया, MVC आर स्क्वायर तो होता नहीं है। हाँ जी, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, AIC देखते हैं। So the first iteration I see AIC is 623.92। यहाँ पर ट्रेन डेटा में -1 किया है मैंने, क्यों? You realize that फर्स्ट कॉलम इज पैसेंजर आईडी। यस, वो मेरे को मॉडल को नहीं बताना है। अगर मैंने मॉडल को पैसेंजर आईडी भी मैंने बता दिया तो ये भी मेरा प्रेडिक्टर वेरिएबल है, वो उसके हिसाब से भी रिग्रेशन बनाने की कोशिश करेगा, गलत कर देगा। तो डिलीट क्यों नहीं किया? पहले डिलीट नहीं किया क्योंकि जरूरी है। रिमेंबर, ये भी बताया था मैंने, अगर यूनिक आईडी को ही अगर मैंने प्राइमरी की या यूनिक की को ही डिलीट कर दिया तो बताऊंगा कैसे कि प्रेडिक्शन किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कौन आदमी था ये? अभिलाषा, वी वोंट पुट ऑल द डेटा विद सर्वाइव्ड एनए। अभिलाषा, वैलिडेशन में तो मेरे को टारगेट वेरिएबल चाहिए होता है ना, वैलिडेट कैसे करूंगा फिर? सर्वाइव्ड एनए उन लोगों का है जिनका प्रेडिक्शन भेजना है मेरे को अपने क्लाइंट को, तो पहले वो वैलिडेट भी तो करूंगा मॉडल, सीधे उठाकर थोड़ी भेज दूंगा। इसीलिए तो ट्रेन और वैलिडेशन में स्प्लिट किया है, नहीं तो फिर सैंपल स्प्लिट क्यों करते? अरे देख ना लड़की, कंफ्यूज क्यों हो रही है? ट्रेन और टेस्ट ये जो हमारे ओरिजिनली थे ये वापस यहाँ पे स्प्लिट कर लिए। ट्रेन डेटा जो मेरे को अवेलेबल था, टेस्ट डेटा इट इज जस्ट लाइक फ्यूचर डेटा। इसमें मेरा क्लाइंट कह रहा है मेरे को बताओ आप क्या कहते हो, कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा। तो टेस्ट डेटा में तो पता ही नहीं ना मुझे कौन सर्वाइव किया कौन नहीं किया, यहाँ पे तो प्रेडिक्शन भेजूंगा। अब मेरे पास ये देखे रह गया ट्रेन डेटा, इसी से मॉडल बनाना है, इसी से वैलिडेट करना है, तो वही किया है सैंपल स्प्लिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइटरेशन, द स्टेप रिडक्शन। बहुत सारे वेरिएबल्स, आलतू फालतू वेरिएबल चले गए होंगे, और देखते हैं कैसा बचा ये। एंड वी सी, यू सी, सारे फालतू वेरिएबल चले गए, बहुत सारे, जितने भी दिखा रहा है अभी सारे इंपॉर्टेंट दिखा रहा है। एंड ए आई सी, ओके, पहले से तो कम ही हुई है, बहुत नेग्लिजिबली कम हुई है। पहले कितनी थी? 23.9 यानी 24 मान लेते हैं, हाँ तो कम हुई है काफी, काफी तो नहीं लेकिन कम ही हुई है, 620 रह गई। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्या करते थे? नेक्स्ट क्या करते थे आप? पी आई एस चेक, रिमेंबर, मल्टीकोलिनियरिटी देखते थे। तो चलो देख लेते हैं मल्टीकोलिनियरिटी। एंड देन देयर इज मल्टीकोलिनियरिटी, व्हाट डू वी सी? सारी की सारी लेस देन 5 है, seems like a good choice।
Did I miss something? Did I miss something? Okay, not exactly. All good. Yes, I missed something. Now it is there. तो मॉडल 2 VIF देख लिया. Now we know किसकी कितनी है, किसी की कितनी भी सही, सबकी. Well, not only 5, it is less than even 2. So perfect case scenario. So I think we are good to go, and we will go to predictions. What I'm creating a new column in validation dataset, that is probability of survival. I want to predict with model log2, new data is validation, and you remember this? Type is equal to response. We did that. क्यों करते थे ऐसा? हाँ जी, टाइप इज इक्वल टू रेस्पॉन्स से क्या होता था? लॉजिस्टिक मॉडल था ये आउटपुट देने वाला था लॉग ऑड्स में, रिमेंबर? अगर मैं टाइप इज इक्वल टू कुछ भी नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो लॉग ऑफ ऑड्स में देगा आंसर. तो मैं उसको वही बता रहा हूँ कि मुझे ऑड्स, लॉग ऑड्स कुछ मत बताओ, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी बताओ. भूल गए? भूल जाते हो तुम लोग. आधा घंटा 1 घंटा इसमें निकलता है फिर. So now I have gotten here a probability column जहाँ पर probability आ रही है, वो कुछ लोगों की probability इतनी बता रहा है, इतनी बता रहा है, इतनी बता रहा है. And we moved ahead with. हाँ जी, इसके बाद क्या किया था आपने? इस probability का कट ऑफ लगाते हैं. Yes or no? और confusion matrix देख लेते हैं. ऐसी कुछ कॉन्फ़िगर मैट्रिक्स आई आपके वैलिडेशन डेटा सेट पर. डायगोनल पे करेक्ट डिसीजंस, एंटी डायगोनल पे रॉन्ग डिसीजंस. हमारी एक्यूरेसी कितनी होती है देखी थी आपने कैलकुलेट करके? करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेडिक्शंस. और यहाँ पे हमारे कुछ 80-81% कुछ ऐसी आई थी, रिमेंबर? बट ये मैनुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फॉर अ कपल ऑफ रीजन. देयर इज अ पैकेज कैरेट जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है ना. कैरेट पैकेज इंस्टॉल्ड है सभी लोगों पर? बोला होगा मैंने. कैरेट पैकेज हैज अ फंक्शन कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स. और ये क्या करता है? ये वही बताता है जो अभी आपने देखा था, जो टेबल फंक्शन से देख रहे थे ना, वही अगर कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स से देखने लगूं तो ये भी वही दिखाता है. अच्छा हाँ, इसका एक
इसके कुछ बेनिफिट्स हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक तो इसको फैक्टर चाहिए, कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ये, कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैटेगोरिकल के बीच में तो बनेगी, तो कैटेगोरिकल इसको बताने पड़ेंगे, कैटेगोरिकल इसको दिखना चाहिए कि ये फैक्टर है। जब ये फैक्टर है तो ये दिखाता है कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कोड तो नहीं कर रहे हो, मैं भेज दूंगा कोड, कोड की चिंता मत करो। तो सबसे ऊपर क्या दिखाया, वही दिखाया रेफरेंस। रेफरेंस की चीजों को बोल रहा है, रेफरेंस मींस एक्चुअल्स, जिनसे आप रेफर करोगे कि आपके प्रेडिक्शन कैसे हैं। एंड दिस साइड इज योर प्रेडिक्शंस, तुम्हारा मॉडल क्या कहता है। तो दिखाया तो वही है जो टेबल टेबल फंक्शन ने दिखाया था, दे आर 0 and 1। तो 120 लोग ऐसे हैं, मेरे मॉडल ने कहा सर्वाइव नहीं करेंगे, मेरा प्रेडिक्शन कहता है एक्चुअली भी सर्वाइव नहीं किए थे, तो करेक्ट डिसीजन हुए। वही डायगोनल पे करेक्ट डिसीजन हुए, एंटी डायगोनल पे रॉन्ग डिसीजन। एक्यूरेसी जो आपने मैनुअली कैलकुलेट की थी वो करने की जरूरत नहीं है, ये खुद बता रहा है। आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, इट इज 95%। रिमेंबर 5% पे हम वेरिएबल रिजेक्ट कर दे रहे थे, बाय डिफॉल्ट मतलब 95% ही रहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू स्पेसिफाई। एंड देयर आर other things also, sensitivity, specificity. These are some things which will be of our interest, and we will discuss them one by one. Now things are going to be a bit interesting, a bit confusing. Want some breathing time? Take it. यहाँ तक अभी कुछ खास नया नहीं हुआ है, नया कुछ नहीं हुआ है, अब होगा। तो here it is, कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपने कैसे देखा। ये डेटा सेट आप लोगों के पास है, रन करके देख लो कोड यहाँ तक, एंड रादर देन टेबल कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स से जरा कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स चेक करो। I will halt here for a few minutes. Okay, I will. Okay, I'll take a note. Meanwhile, take a few minutes to run this code till here. देख लो एक बार फिर से पूरा यहाँ तक रन करके, and it's 3:21 by my clock. We resume at 3:30. Okay, it's around 10 minutes break. So I hope that will do the job. You want me to paste the code here? Okay, I'm dropping it just now. Here, this is the set one. It will not go in one go. So this one. Please don't drop chat or it will break the flow of what I am texting, what I am pasting here. This is two. There are three. Four. And five. So this is a set of five in sequence. You can copy and paste one by one and run it along.
Okay, so I'll continue in 10 minutes. Meanwhile, run this code, stress yourself, okay, and we'll start off with a fresh mind. See you there. We connect again. Please ping me quickly, those who are here. I hope everybody is there. Very well. Now there are a few things which are tricky about confusion matrix. So I want you to be very, very alert now. And it is important. बहुत बार internships में, maybe even in jobs, they come down to this question. It boils down to this question many a time. First one is, it is showing here positive class. Now, what do they mean by positive? See, there is a variable of my interest. I am calling it target variable. Now, within this variable, there is a class. There are two classes here, survived or non-survived. Usually, in such cases, I will be interested in a class which is true. Yes or no? Like here, if I was predicting for a practical problem, I would be very much interested in knowing who will survive rather than who will be deceased. Yes or no? It will happen. I'll give you another example. If you're doing a project for bank is giving credit card to its customers or maybe some loan to its customers, and bank wants you have a data which has target variable whether the customer will default or customer will not default. What do you think will be bank will be more interested in knowing? I'm getting the idea. Are you getting the idea? Default means those who don't pay back for some reason. Maybe their intention is not to pay, maybe they are not capable of paying back. उनको हम बोल रहे हैं कि उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया. Guys, I'm asking you to be attentive. You are giving me a feeling that you are laying back on a lavish chair, ready to doze off. Either you are not getting this idea, जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो समझ नहीं आ रहा है. You are getting this idea, right? हाँ, अगर ये एग्जाम्पल काम नहीं कर रहा तो ये बताओ, तो फिर मैं कुछ और बात करूंगा ना फिर. अरे रिमेम्बर बैंक वाला वो तो देखा था तुमने डेटा. एक डेटा देखा था ना बैंक से रिलेटेड. आई हैव शोन यू मैनी डेटा सेट्स. आई हैव ट्राइड टू कीप वर्सटाइल कि अलग अलग तरह के डेटा आप लोग देखते रहें. दिस इज विजिबल, दिस डेटा. सपोज यू हैव सेवरल वेरिएबल्स कि ये कस्टमर का एज किस एज का था, व्हाट वाज इट्स हिज और हर जॉब प्रोफाइल,
सैलरी कितना ले रहे थे, मैरिटल स्टेटस ओके, दैट विल गिव मी नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स काइंड ऑफ थिंग, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, एजुकेशन कैसी है, अगर जॉब छूट गई दूसरी जॉब पकड़ लेगा, कुछ और काम कर लेगा कि नहीं कर पाएगा, एंड ओके बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करता है, वेरी फाइन, हाउसिंग उसके पास अपना रेजिडेंस है तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम भाग तो नहीं सकता, घर पे तो मिलेगा, एंड देन फाइनली दे आर ट्राइंग टू सी वेदर दिस कस्टमर डिफॉल्टेड और नॉट। नाउ थिंक अबाउट इट, बैंक का इंटरेस्ट किस बारे में ज़्यादा होगा? यार डिफॉल्ट नहीं कर रहा वो तो नहीं ही कर रहा। हाँ वो बताओ जो रिस्की कस्टमर है जिनको पैसा देने से डिफॉल्ट हो सकता है, यस और नो? So in practical cases, there will be this kind of classes. So there can be a number of examples. If I give you an idea, your target variable when it is of logical family, yeah, I must say binomial family, कैसा हो सकता है? Like you see bank or some credit lending firm. You know this is my favorite because this was this my specialization was BFS analytics when I was a student like you. So I have a special interest in that. मे बी डिफ़ॉल्ट एंड नॉन डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। और क्या हो सकता है? टेलीकॉम, perhaps we have talked about this also। टेलीकॉम या मे बी ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन रिटेल बिजनेस लाइक अमेज़न और फ्लिपकार्ट। इनकी टेंशन पता है किस चीज़ की होती है? कस्टमर चर्न और नॉन चर्न। कस्टमर हमें छोड़ के कॉम्पिटिशन के पास तो नहीं चला जाएगा? यस और नो, ट्रू और फॉल्स अगेन। नाउ थिंक अबाउट इट, कहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इनका? बैंक का अभी देखा आपने, बैंक वुड लाइक टू नो हु विल डिफ़ॉल्ट, इस कैटेगरी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। नॉन डिफ़ॉल्ट ओके ठीक है, नॉन डिफ़ॉल्ट पता चल रहे हैं अच्छी बात है, ये कस्टमर रिस्की नहीं है, बट रिस्की नहीं है तो नहीं है, दे देंगे पैसा वापस, ये इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ जी, कस्टमर चर्न नॉन चर्न। अरे ये जो तुम्हें फ़ोन आते हैं फीडबैक के लिए और तुम धमका देते हो उन्हें, आइडिया वालों को, वोडाफोन वालों को, भागे यहाँ से, फ़ोन मत करना दोबारा। हाँ, एमएनपी अवेलेबल है, अभी उठा कर डालता हूँ तेरा नंबर पोर्ट, सब जा रहे हैं जियो में। गॉट इट? तो टेलीकॉम इंडस्ट्री दे विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग हु विल चर्न। जो नहीं जा रहे हैं वो तो नहीं जा रहे हैं, इनको कैसे रोकना है वो सोचते हैं कुछ। Somehow let's give them a better experience or maybe some offer or this or that something। उसी को बोल रहे हैं पॉजिटिव क्लास, कि मेरे टारगेट वेरिएबल में देयर आर टू क्लासेस, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। सो फिलहाल इट इज ट्रीटिंग पॉजिटिव क्लास इज जीरो, बाय डिफॉल्ट उसने जीरो ले लिया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट, हाँ जी, सर्वाइव नॉन सर्वाइव जीरो और वन, मेरा इंटरेस्ट क्या जानने में है? सर्वाइवल, आई थिंक। So there is a parameter positive, I can mention which class to be positive, and since it is categorical, so I will represent it as character, I am mentioning it as 1। So positive treat करिए 1 को। अब बताइए कॉन्फिगर मैट्रिक्स। If you have really run so far, you will realize कि एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या फर्क पड़ रहा है? करेक्ट डिसीजन अब भी उतनी ही है, गलत डिसीजन अब भी उतनी ही है। लेकिन इफ यू पे अटेंशन टू दिस, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। ट्राई टू डू दिस एंड टेल मी व्हाट डू यू रियलाइज।
Now positive class is 1. That is okay. What do you see here in sensitivity specificity? There are, two tongue twisters here. Sensitivity and specificity. Yeah, really tongue twister. You realize they have कुछ change हुआ है यहाँ पर. Check this out. Do it yourself. पहले जब ये पॉजिटिव क्लास 0 था, उस समय सेंसिटिविटी इतना था, स्पेसिफिसिटी इतना था. अभी पॉजिटिव क्लास जब 1 किया है, दे हैव इंटरचेंज्ड. नाउ दिस इज 1. अब ये होता क्या है उसकी बात करेंगे अभी 1 मिनट के अंदर. You have attained. This is something your confusion matrix is. Let's check this out. Let's see. वही बना रहा हूँ जो confusion matrix थी आपकी अभी. ये थी आपकी confusion matrix. यही थी. अरे यही तो थी. बस थोड़ा सा कुछ बनाने की कोशिश की है इसको, और वेरी पर्टिकुलर चीज़ है. थिंक अबाउट दिस. मैंने अभी रखा है पॉजिटिव क्लास 1, नेगेटिव क्लास इज 0. नाउ डोंट कंफ्यूज विद इट एनीमोर कि किसको क्यों रखा है. अभी स्टे विद मी कि 1 इज पॉजिटिव, 0 इज नेगेटिव. We are going into a terminology, and it is very confusing. So get it right in the first in this. अभी आगे तो आगे, नहीं तो हमेशा confusion ही होता रहेगा. I am very much sure of it. We call it confusion matrix for a very good reason. You will just get to know it. ये हमारा confusion matrix था. These were the people. ये 120 लोग वो थे जो एक्चुअली सर्वाइव नहीं किए, यानी 0. हमारा प्रिडिक्शन भी कहता है 0. कहीं सुना है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ऐसी कई बातें होती हैं, सुनी हो. हाँ, वहीं पहुंचे हैं हम आज. तो ये डिसीजन कैसे हैं, ये प्रिडिक्शन कैसे हैं मेरे मॉडल के. कैसे कैसे डिसीजन है. दीज आर ट्रू डिसीजंस. माय मॉडल इज प्रेडिक्टिंग ट्रू. यस और नो. मेरा मॉडल का प्रिडिक्शन ट्रू है.
और वो प्रेडिक्शन क्या कहता है कि ये लोग कौन सी क्लास के हैं। समझ गए, ये लोग हुए ट्रू नेगेटिव, तो ये 120 लोग वो हैं मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग विच आर गोइंग टू ट्रू नेगेटिव। मेरे मॉडल का प्रेडिक्शन ट्रू था, और कौन सी क्लास के लिए था, नेगेटिव क्लास के लिए। हाँ हाँ, गेट इट इजीली, आराम से चलेंगे, नो प्रॉब्लम। दोबारा समझो, ये लोग कौन थे, जीरो थे। मेरे मॉडल ने क्या डिसीजन दिया इन 120 लोगों के बारे में, नेगेटिव। दीज आर नेगेटिव क्लास, जीरो, और एक्चुअली भी नेगेटिव है। समझ गए, तो ये तो होता है मेरे मॉडल ने डिसीजन क्या बोला, मेरे मॉडल ने क्या डिसीजन बोला है, ये लोग नेगेटिव हैं। और ये होता है कि ये डिसीजन मेरे मॉडल का ट्रू था कि नहीं था। इस तरह से इनको बोला हमने ट्रू नेगेटिव। समझ गए, मेरे मॉडल ने बोला क्या, कौन सी क्लास में बोला इनको, और फिर ये लिख दिया हमने कि ये डिसीजन मेरे मॉडल का ट्रू था कि फॉल्स था। यहाँ तक सही है। व्हाट अबाउट दीज पीपल। हाँ जी, मेरे मॉडल का डिसीजन क्या है इन लोगों के बारे में, देखो इन लोगों के बारे में। मेरे मॉडल का डिसीजन है, हाँ जी, मेरे मॉडल ने क्या बोला इन लोगों को, वन बोला है। तो मेरे मॉडल ने डिसीजन कहा है कि ये लोग दीज आर पॉजिटिव क्लास। और मेरे मॉडल का डिसीजन क्या था, ये डिसीजन भी ठीक है, एक्चुअली भी वो लोग सर्वाइव किए थे। तो ये डिसीजन कौन होगा, ट्रू पॉजिटिव। मेरे मॉडल ने बोला पॉजिटिव क्लास में है, और मेरा मॉडल ट्रू भी है। सॉर्टेड, यहां तक ठीक हुआ। व्हाट अबाउट दीज पीपल। व्हाट अबाउट दीज पीपल, दीज 17 पीपल। बोलो, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी स्पीक आउट नाउ। आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू, आई वांट यू पीपल टू स्पीक आउट। समझ आ रहा है, इन लोगों को मेरे मॉडल ने बोला क्या है, इन 17 लोगों को मेरे मॉडल ने क्या बोला है, वन, यानी पॉजिटिव क्लास। तो मेरे मॉडल ने इनको पॉजिटिव बोला है, लेकिन ये डिसीजन कैसा है मेरे मॉडल का, डिसीजन कैसा है, गलत हो गया है ये डिसीजन मॉडल से। मेरे मॉडल ने बोल दिया सर्वाइव करेंगे, एक्चुअली सर्वाइव नहीं किए थे। तो दीज आर फॉल्स पॉजिटिव्स। ये भी ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट अबाउट देम। अब तो आसान हो गया, अब तो समझ आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अगर आ गया होगा तो आगे आ गया होगा, नहीं तो पता कब समझ आएगा, जब एक दो बार रिजेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू में इस बात के ऊपर, तब समझोगे अपने आप कहीं से पढ़ पढ़ा के। हाँ जी, मेरे मॉडल का डिसीजन क्या था इन लोगों के बारे में,
इन लोगों के बारे में मेरे मॉडल का डिसीजन क्या था? ज़ीरो, सर्वाइव नहीं करेंगे, नेगेटिव क्लास। लेकिन ये डिसीजन कैसा हुआ फाइनली? डिसीजन हो गया फॉल्स, बिकॉज एक्चुअली ये लोग सर्वाइव किए थे, तो फॉल्स, नेगेटिव। चंगा, बढ़िया। जस्ट लीविंग दिस फॉर स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। वैसे क्या करोगे स्क्रीनशॉट लेके? ऑनलाइन बहुत कुछ मिलेगा, मैं ही भेज दूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में। बट जस्ट टू गिव यू वन व्यू। नाउ टेल मी द डिसीजंस व्हिच आर ट्रू, वो तो अच्छे हैं। एंड आई वुड लाइक यू टू थिंक इन प्रैक्टिकल टर्म्स। टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, नॉट सर्वाइव नॉन सर्वाइव, कोई भी एग्जाम्पल समझ लो, अपने हिसाब से ले लो, डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट, और मे बी चर्न नॉन चर्न, और मे बी यू नो सम यू नो किसी को कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है, मोस्ट बर्निंग एग्जाम्पल। मेरा मॉडल दो तरह की मिस्टेक कर सकता है, फॉल्स नेगेटिव डिसीजन हो सकते हैं उसके, या फॉल्स पॉजिटिव डिसीजन हो सकते हैं उसके। व्हाट डू यू थिंक विच इज मोर फैटल? Which one do you think is more fatal? Think about it. Think about it. Okay, I got an illustration. False positive. कौन सा एग्जाम्पल सोच रहे हो तुम? देखो, ये तो मेरे ठीक डिसीजन है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये तो जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। बचे ये जो गलत हो गए हैं, उनमें समस्या है। थिंक अ प्रैक्टिकल थिंक अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। अगर मेरा डेटा कुछ ऐसा है, आई वांट टू बिल्ड अ प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम व्हिच प्रेडिक्ट्स के कोविड डिटेक्ट होगा या नहीं होगा इस पेशेंट। वन मीन्स ट्रू, जीरो मीन्स नो। I am having a data, it has target variable, whether COVID infected, true or false. So one is there which says infected, zero is there which says not infected. हाँ वही तो कह रहा हूँ, वही तो समझाना चाह रहा हूँ यस बाकी लोगों को। फॉल्स पॉजिटिव कैसे हो गया? फॉल्स पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? फॉल्स अलार्म भी कहते हैं। एक्चुअली इन लोगों को कोविड नहीं था, नेगेटिव क्लास है। एक्चुअली ये लोग डिफॉल्ट नहीं करने वाले थे, एक्चुअली ये लोग चर्ण नहीं होने वाले थे। तुम्हारे मॉडल ने
योर मॉडल रेज्ड अ फॉल्स अलार्म। ओह, इन्फेक्शन निकलेगा, टर्न हो जाएगा, डिफॉल्ट कर देगा। एक्चुअली नहीं करने वाला था। So actually this is false alarm. Your model has raised a false alarm. You are unnecessarily alarmed. You did not have to worry about this for these 17 people. They were doing what they were doing, but they were belong to actually negative class. But your model alarmed you that they will be detected positive. On the other hand, false negative. इनको इन्फेक्शन होने वाला था, मिलने वाला था, इनको इन्फेक्शन था, मतलब एक्चुअली ये डिफॉल्ट करने वाले थे, ये चर्न भी होने वाले थे। तुम्हारे मॉडल ने कहा ना ना, कोई टेंशन की बात नहीं, ज़ीरो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक, विच इज़ मोर फैटल, विच इज़ मोर ग्रेव मिस्टेक, विच इज़ मोर हार्मफुल? गॉट दिस राइट? So your false positives, they are okay. You should not ignore them. You should not ignore them. Ignore नहीं होना चाहिए. Keep an eye on these things. But yes, this is something which is a red sign. By the way, आपका मॉडल ऐसी मिस्टेक से ज़्यादा कर रहा है? Yes or no? इजी टाइप का मिस्टेक ज़्यादा किया है उसने? 27. You got this thing? Confusion matrix? All hunky dory, बल्ले बल्ले, चलूँ आगे? Getting this idea right? In a practical case scenario, there you will come across many such examples. Default non-default is one of them. So maybe, first of all, customers themselves don't intend to default. On top of that, there are many checks of bank. If bank gets the slightest of the idea कि यहाँ मेरे को कुछ risky लग रहा है, they will not provide they will not serve the loan. I don't know how many of you have worked in this loan industry. I have seen this very closely. My business was, kind of day in and day out with credit lending from all these typical firms. Despite that, despite every check and everything, फिर भी डिफॉल्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हो गए, चलो मान लिया हो गए। से देयर वर 100 कस्टमर्स, 100 में से 10 फिर भी डिफॉल्ट कर गए। सारी चीजें होते होते भी। दिस इज एक्चुअल केस सिनेरियो। एक्चुअल केस सिनेरियो, सारे चेक्स ठीक थे, फिर भी 10 लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, 90% लोगों ने फिर भी डिफॉल्ट नहीं किया। तो दैट इज द एक्चुअल केस सिनेरियो है। मैं क्या बोल रहा था आपसे? एक्यूरेसी अलोन कैन बी डिसीविंग। वी डोंट ट्रस्ट ओनली एक्यूरेसी।
चेक दिस आउट, तुम्हारा मॉडल एकदम गधा मॉडल है, उसे दिखता ही नहीं कौन डिफॉल्ट करेगा, उसे मौज आ रही है, वो कह रहा है कोई डिफॉल्ट नहीं करता, सारे बहुत बढ़िया आदमी होते हैं, तो सबको पैसे दे दो, ये कह रहा है तुम्हारा मॉडल। कैन यू कैलकुलेट एक्यूरेसी ऑफ दिस मॉडल? Number of correct predictions divided by number of total predictions. कैन यू सी कितनी एक्यूरेसी आने वाली है आपके मॉडल की? क्या डिसीजन दिया आपके मॉडल ने? कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा, सबको उसने नॉन डिफॉल्ट बोला है, ऑल बिलोंग टू जीरो क्लास। think about it, get the idea, correct नागेंद्र, फैंटास्टिक। अरे डिसीजन 200 थोड़ी हुए हैं, डिसीजन तो 100 ही हुए हैं। अरे ये कस्टमर तो कस्टमर तो 100 ही थे, उन 100 में से 90 डिड नॉट डिफॉल्ट, हाउएवर 10 डिफॉल्टेड एक्चुअली। हाउएवर हमारा प्रेडिक्शन क्या था? हमारा प्रेडिक्शन था, हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करके बताया था कि नहीं नहीं कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा। नाउ थिंक अबाउट इट, नंबर ऑफ टोटल प्रेडिक्शंस कितने किए हैं हमारे मॉडल में? 100, और 100 में से ठीक कितने हो गए उसके? देखो कितने हो गए। तो मॉडल एक्यूरेसी 90%, और एक्चुअली ये गधा मॉडल था। इन अ वे इफ आई से ये मॉडल ही नहीं था, प्रेडिक्शन थोड़ी किए हैं इसने अरे प्रेडिक्शन थोड़ी किए हैं इसने, ये तो खा पी के सो गया, कह रहा कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा, जाओ ऐश करो। तो देखने में एक्यूरेसी बहुत अच्छी लग रही है, मेरा काम कितना किया है इसने? डिफॉल्टर कितने पकड़े हैं इसने? कितने पकड़े हैं? 0। सही बात है, बड़ा अच्छा मॉडल बनाया हमने, 90% एक्यूरेसी देता है। दैट्स वेयर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी कम्स इन। नाउ व्हाट आर दे? हमने देखा कि सिर्फ करेक्ट प्रेडिक्शन देखने से काम नहीं चलता, मेरा काम भी होना चाहिए। तो सेंसिटिविटी इज करेक्ट प्रेडिक्शन इन पॉजिटिव क्लास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स। ठीक है, दैट रेशियो इज सेंसिटिविटी। पॉजिटिव क्लास के टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे और उनमें से मैंने कितने ठीक प्रेडिक्ट किए हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, दिस मॉडल, जस्ट दिस अबव मॉडल जिसकी एक्यूरेसी 90% आई थी अभी, इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ दिस? गेट इट नो? तो नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन कितनी थी, एक्चुअली कितने डिफॉल्ट किए थे? इफ पॉजिटिव क्लास इज डिफॉल्ट इट वाज 10। करेक्ट प्रेडिक्शन कितने हैं? करेक्ट प्रेडिक्शन कितने हैं? हाँ, नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव वो तो 10 था, मेरे मॉडल ने कितने पकड़ लिए? कहाँ पकड़ लिए? इवेंचुअली 0%।
ठीक है जी। स्पेसिफिसिटी क्या होता है? दिस इज जस्ट, you can say it is, inversely proportional to sensitivity. It is correct prediction of negative class divided by total odds of negative class. तो हाँ जी, स्पेसिफिसिटी कितनी है हमारे मॉडल की, इसी मॉडल की? हाउ मेनी आर द टोटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेगेटिव क्लास? देयर आर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेगेटिव क्लास? You are beginning to getting the you are getting idea, right? नेगेटिव क्लास जीरोस कितने हैं एक्चुअली? 90। और उनमें से ठीक प्रेडिक्शन कितने कर दिए हमारे मॉडल ने? अरे 90 जो भी होंगे इन 100 में से ही तो होंगे, वो तो 100 के 100 को 90 बोल, सबको ही जीरो बोल रहा है, तो सारे ठीक कर दिए होंगे उसने। दिस इज ऑल्सो 90। 100% स्पेसिफिसिटी। So where do we reach with this? Accuracy alone is deceiving, we get to know. We have to see these two things also, sensitivity and specificity. For an optimal model, we will try to strike a right balance. देखो स्पेसिफिसिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव्स में इसका मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। अगर स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो लाइक इन दिस केस स्पेसिफिसिटी 100% हो गई तो पॉजिटिव क्लास में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, सेंसिटिविटी 0 हो गई। एंड इट इज़ वाइस वर्सा, दिस केस इज वाइस वर्सा ऑल्सो। अगर मैं सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगी, वो भी अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब अब ये कि मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो कैसा हो गया ये केस? मैं कह रहा हूँ किसी को लोन मत दो, सारे डिफॉल्टर है, पूरी कौड़ी मत दो किसी को। क्या होगा इससे? सारे अच्छे कस्टमर को भी भगा दोगे तुम। यही तो कर रहे हो, यस और नो? Now you are crap scared and you don't want to shell out even a penny, and you are like, no, 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 everybody is defaulter. इसे भी मत दो, उसे भी मत दो, उसे भगा दो, सबको भगा दो, भगा दो सबको। करोगे क्या? काम क्या करोगे? Right? So, unless and until specified by business problem, what we will do is we will try to strike a balance between sensitivity and specificity. We will not only trust this accuracy alone. तो हम देखेंगे क्या कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इक्वल हो, इक्वल ना भी हो तो ऑलमोस्ट इक्वल हो, राइट? तो इन दोनों के बैलेंस से हम डिसीजन लेते हैं कि ये मॉडल हमारा ऑप्टिमल मॉडल होगा। getting back onto Titanic. What we observe is sensitivity and specificity. हाँ जी, क्या सीन है? There is gap. Sensitivity is 68%, specificity is 87%, overall accuracy 80%. तो इसे तो अभी देख ही नहीं रहे। देखो स्पेसिफिसिटी अगर जरूरत से ज़्यादा होगी, here there is a considerable gap in them. स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होने का मतलब है सेंसिटिविटी कम होना, सेंसिटिविटी कम होने का मतलब है हमारा मॉडल इज नॉट एफिशिएंट इनफ टू प्रेडिक्ट द पॉजिटिव क्लास प्रॉपर्टी। नेगेटिव क्लास पे उसका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। इन दिस केस हमारा मॉडल जो सर्वाइव किए हैं उन लोगों को प्रेडिक्ट करने में अच्छा नहीं है। टोटल सर्वाइव अगर 100 लोग किए थे उनमें से ओनली 68 लोगों को पकड़ पा रहा है हमारा मॉडल। व्हाट कैन बी डन? व्हाट इज योर आइडिया कि इसको बैलेंस करने का क्या तरीका हो सकता है?
नो आइडिया, कोई तरीका समझ आ रहा है? आपने डेटा क्लीन कर लिया था, मॉडल आपने आइटरेशन कर लिए, स्टेप रिडक्शन कर लिया, VIF चेक कर ली, blah blah blah, everything taken care of. All are important parameters in your model. All are non-collinear, and now you ended up with a decent model. But however, it is giving you sensitivity and specificity like this, and you do something about it. As a matter of fact, yes, you can still do something about it. उसी को बोल रहे हैं कि हम ट्यूनिंग कर रहे हैं now. My tuning my prediction, and remember this. Remember this. The sigmoid function. See, हमने क्या किया था, यहाँ देख रहे हो इस वाले केस में, जब हम कोड कर रहे थे, हमारे मॉडल ने आउटपुट दिया प्रोबेबिलिटीज में। प्रोबेबिलिटीज आ गई, मैंने उनको एक वैलिडेशन डेटा सेट में कॉलम बना दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। इसमें मैंने कट ऑफ लगाया 50%। हाँ, कि प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है तो बोलेंगे सर्वाइव 1, 50% से कम है, हाँ यही तो बता रहा है यार मेरा मॉडल, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। उसने 50% से ज़्यादा बोली है तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, सर्वाइव कर गया होगा। मेरा मॉडल कह रहा है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 50% या उससे कम है, तो मैं कहूँगा सर्वाइव नहीं किया। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन जहाँ भी बना होगा, वहाँ पर क्या हो रहा होगा? थिंक अबाउट इट। मैंने कट ऑफ कहाँ लिया है? यहाँ। मैंने यहाँ पे लिया है कट ऑफ 50% पे। सही बात है। इससे ऊपर वाले सारे 1, इससे नीचे वाले सारे 0। अब ये तो मेरा प्रेडिक्शन होगा। अब थिंक अबाउट इट, अगर एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हुए, यार ऐसे भी हो सकते हैं ना, मैंने बोला था मेरा मॉडल मिस्टेक कर सकता है। देयर मे बी पीपल जिनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, जिनकी प्रोबेबिलिटी मेरे मॉडल ने कम बताई है, लेकिन एक्चुअली वो सर्वाइव कर गए थे। यस और नो? ज़्यादातर 1 तो ऊपर होंगे जो सर्वाइव कर गए थे, अगर मेरे मॉडल ने ठीक ठाक पकड़ लिए हैं तो ज़्यादातर 1 ऊपर हैं। कुछ 1 ऐसे भी हो सकते हैं जो कट ऑफ प्रोबेबिलिटी से नीचे रह गए। मेरी टेंशन क्या है? सेंसिटिविटी कम आई है, यानी 1 कम पकड़ पा रहा है मेरा मॉडल, मुझे 1 पकड़ना है। थिंक अबाउट इट, अगर मैं ये कट ऑफ थोड़ी सी नीचे ले लूँ, हाँ जी, कुछ एक्स्ट्रा 1 पकड़ में आ जाएंगे। अभी जो पकड़ में नहीं आए थे क्योंकि कट ऑफ से नीचे रह गए थे, कट ऑफ से नीचे रह गए तो मैंने गलती से 0 बोल दिया उनको। अगर मैं ये कट ऑफ नीचे ले जाऊँ तो शायद कुछ और 1 भी मुझे मिल जाएंगे। कुछ और 1 मिल गए तो सेंसिटिविटी शायद इंप्रूव हो जाएगी। आओ देखते हैं। मैंने कट ऑफ ली थी 50, नाउ आई एम टेकिंग से 35। पहले 50% लिया था कट ऑफ, अब 35 ले रहा हूँ। एंड आई गो टू कॉन्फिगर मैट्रिक्स अगेन, एंड व्हाट हैपेंस? एक्यूरेसी अब भी 80% ही है। एक्यूरेसी देख रहे हो? एक्यूरेसी 80% ही है। एक्यूरेसी को फर्क नहीं पड़ा। ओवरऑल एक्यूरेसी तो पहले भी 80 दिख रही थी। हाउएवर, हमने देखा था कि हम एक्यूरेसी नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं? स्क्रीन स्टक, मे बी इट्स लैगिंग, maybe it's lagging because of my connection. Rains are very good for weather, very good for
climate, very good for soil, very good for everything, not good for internet connections. ठीक है जी, तो हमें पता चल गया कि कट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं लेनी है। So now seems like sensitivity specificity are balanced. So my model is not biased towards positive और negative class. हाँ, वो यूजुअली वो अच्छे प्रेडिक्शन दे रहा है। 80% वो दोनों तरफ करेक्ट प्रेडिक्शन देता है। 20% उससे मिस्टेक होती है, लेकिन वो तो दोनों तरफ ही हुई। So now it is not biased towards anything. This seems like a decent model. अब चल सकते हैं। हमारा मॉडल बन चुका है, बैलेंस हो चुका है, ट्यून हो चुका है, एंड नाउ आई कैन सेफली से, मैं देख रहा हूँ कि 80% एक्यूरेसी, ओवरऑल एक्यूरेसी आती है। सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी मैं बैलेंस कर चुका हूँ। आई हैव फाउंड आउट प्रॉपर कट ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेट्स गो अहेड विद एक्चुअल प्रेडिक्शन। अब मैं प्रेडिक्शन पे जाता हूँ। हाँ जी, कैसा करेंगे प्रेडिक्शन? अब की बार टेस्ट डेटा पकड़ लेते हैं। ये था टेस्ट डेटा। ये था जी टेस्ट डेटा सेट। What do we need to do? ओके, इसका डमी नहीं बना था। इसका डमी बनने से रह गया था मेरे से। सो नाउ आई हैव क्रिएटेड डमी। ओके, लेट्स गो अहेड। अभी मेरे को कुछ खास काम नहीं करना है। मॉडल वाज लॉग टू, न्यू डेटा इज टेस्ट दिस टाइम। अगेन मेरे को रेस्पॉन्स में क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटीज। आई एम क्रिएटिंग अ कॉलम प्रोबेबिलिटी इन टेस्ट डेटा सेट। हियर इट गोस। आप लोगों को कोड कहाँ तक भेज चुका था मैं आगे का भेज देता हूँ। आई हैव टेकन बहुत सारे स्टेप्स ले लिए मैंने अब तक। ओके, अब टू कॉन्फिगर मैट्रिक। तो वेरी फाइन। कट ऑफ वो तो भेज चुका हूँ, कट ऑफ जस्ट आपको ट्वीक आउट करना है। Next, what do we do is just check this out here in the chat box. I will just call out, you run along and see what is happening. देख लेना। अब की बार हम क्या कर रहे हैं? We are predicting probabilities
टाइप इज इक्वल टू रेस्पॉन्स लिखा हुआ है हमने। तो इस बार log 2 से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं द डेटा इज टेस्ट दिस टाइम फेयर। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, टेस्ट में सर्वाइव्ड कॉलम में अभी तक जो एन था, अभी तक एन भरा हुआ था ना, उसमें एन भरा हुआ था। जब प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कॉलम, तो वहां पर बोल रहा हूँ टेस्ट डॉलर सर्वाइव्ड में क्या फिल कर दो, प्रोबेबिलिटी पे लगाओ कट ऑफ। कट ऑफ कौन सा, अभी जो देखा था आपने, बैलेंस किया था ना, तो आपको वो कट ऑफ प्रोबेबिलिटी पता है। अब बता दो इससे ऊपर वाले 1 है, नीचे वाले 0 है। सो दिस विल बिकम योर सर्वाइव्ड कॉलम। यह बात ठीक हुई। नाउ फाइल रीड करने के लिए, कमांड होती है read डॉट csv। नाउ आई वांट टू राइट दिस फाइल। विच फाइल, टेस्ट का फंक्शन इज राइट डॉट csv। आई वांट टू राइट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम हियर। कौन सा डेटा फ्रेम, टेस्ट का सिर्फ 2 कॉलम्स, नॉट ऑल। अगर पूरा करना है तो पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 2 ले रहा हूँ। क्यों, बिकॉज यू विल सी दैट सबमिशन का सिंटैक्स ऐसा ही है, उसमें सिर्फ 2 मांगे गए। दे ओनली वांट टू नो कि हाँ उन पैसेंजर्स की आईडी क्या थी। रिमेंबर, यूनिक की को हमने ड्रॉप नहीं किया था, करना भी नहीं होता है, वो काम आता है। तभी तो पता चलेगा किसके लिए 0 बोल रहा हूँ, किसे सर्वाइव बोल रहा हूँ, किसे नॉन सर्वाइव बोल रहा हूँ। तो यहाँ से कॉलम 1 इज पैसेंजर आईडी, कॉलम 2 विल बी सर्वाइव, जहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन होगा 0 और 1। आई वॉन्ट टू कॉल दिस फाइल एज सबमिशन डॉट csv। और ये फाइल आर स्टूडियो से मेरे मशीन पे चली जाएगी। कहाँ पर जाएगी, मशीन पे। मशीन में कहाँ, विच ड्राइव, विच फोल्डर, विच लोकेशन ऑन योर मशीन। Want to make some wild guess? Actually working directory. I spoke about it. I remember, बिल्कुल शुरू में बात हुई थी। आर सिर्फ एक फोल्डर से बात करेगा आपके मशीन पे, वहीं से रीड होगा, वहीं से राइट होगा। ठीक है। सो वंस यू आर डन, यू विल हैव दैट सबमिशन फाइल रेडी एंड you will upload that on Capel. That will become your submission. So that's one hell of a session today. Intense हो गया होगा शायद थोड़ा सा, but I tried to keep it interactive, tried to take, lucid examples, interesting examples. Now at the very least, please try these hackathons. कल को मैं पत्ता खोल दूंगा एक दूसरा हैकाथॉन। तो प्लीज बी ऑन योर टोज। This is not the time to get slack, guys. Actually, this is the time to pull up your socks. Okay, very fine. So let's catch up tomorrow. Winding up for today. So very well, guys. Bye bye. Take care. Let's connect tomorrow.